Hello everyone. Hi. Good afternoon everyone, and I welcome you all for this lovely session. It's simply great to see all of you waving and saying hello. Hi Preeti. It is always pleasure to find Preeti online. It gives me, immense happiness and energy boost up. Thank you so much. महिमा, great. इतने दिनों के बाद महिमा से मुलाकात हो रही है. That's really great. अपने पुराने students को देख के online I feel really really great. So, hi Shashank. I think Shashank is absolutely on time. Let me include him, and I'll just invite him. Yeah. Hello Shivam. Hello everyone. He is the first guest. Hello guys. Absolutely on time, and in fact, all the guests of mine are on time. But we connect हो गए. I'm just waiting for him. And in between, hi Akriti. Hello everyone. Chirag. Hi Hi. Chirag. Let me first introduce. जब तक सर आते हैं, I welcome you all from. I am Manisana from School of Arts and Design, ITM University. Hi Shashank. Hello Mani ma'am, how are you? Absolutely fine. I will also call you ma'am because everybody calls you ma'am. I think your voice is सर का आवाज सबका मतलब audible है सबको ठीक Can you है? hear me? हाँ I can hear you. Sir is not visible. Okay. अभी देखो थोड़ी देर में सर visible Okay. हो जाएंगे. Okay. Am I audible? Can you hear me? Yeah. You are audible to me, and I think Perfect. सबके audible है sir. Sir audible है. So this is our fifth live session. School of Arts and Design की तरफ से first of all I would like to welcome Shashank. Shashank को मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ मिलने की, but लगता है कोविड ने हम दोनों को आमने सामने ऐसे मिलाया. But it's pleasure I know. to, So we've been trying to do this for last 1.5 years, and I know yes. every time you call me up, and I'm Ali. always busy, and it's very difficult. Yeah. So first of all, School of Arts and Design from ITM University is delighted to welcome our next guest, who is Mr. Shashank Jain, for our Instagram live series, which is fifth live series. Let me just have a short, introduction about Shashank before he speaks with us. Thank you. बड़ा अच्छा लगा ये सुन के. He is one of the top grade interior designer of our country. Mr. Shashank is a co-founder. Is a new age interior design furniture and decor company which helps you to design and build your empty home to a fantastic and lively adorn with an affordable cost, which is very good. और शशांक जी अपने लाइव उनके यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं तो चैनल में अपने बनाते भी रहते हैं और बताते भी रहते हैं. That's fantastic. Before Wudofa, he has worked as a consultant with over 500 companies, which includes Adidas, Ted Baker, Good Life. And after spending his early life in London, he moved to India just to follow his passion for interiors. So you can speak well about interiors and थोड़ा सा वो भी फिर से मेरे ख्याल से थोड़ा सा कनेक्टिविटी एरर है, बट दैट्स ओके. ही विल जॉइन अस अगेन. तो मिस्टर शशांक को हमने बहुत अब जो हमारा जो अब पोस्ट कोविड जो ऑफिसेज एंड ऑफिस स्पेस है, हम आज उनके बारे में बात करेंगे. स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन ट्राइज टू ब्रिंग डिफरेंट टॉपिक्स फॉर my students, Elvis, everybody present, Gwalior se bahar ya koi bhi hai who can really take benefit of these talk sessions and series.
बात कर सकते इन सब से हमारे से आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स आज के ज़माने में एक पॉजिटिव साइड ये है कि आप आपके साथ ये एक पॉजिटिव है कि इस मोमेंट में आप घर पे बैठ के बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स से आप मिल सकते हैं जिनके साथ मुलाकात करने के लिए हमें एक लंबा समय का वेट करना पड़ता है, या फिर बहुत सारा। वेलकम बैक शशांक। Thank you so much. Sorry, I got disconnected because of internet issues, I guess. हाँ, थोड़ा सा वो रहता है, समटाइम्स इट डज हैपन, क्योंकि अभी थोड़ा सा वैसा है। तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया था और आप अपने बारे में थोड़ा सा खुद आप बता सकते हैं 5 मिनट। सो एंड वी कैन स्टार्ट विद 2-3 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव, और उसके साथ आप तो वैसे मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दें अपना छोटा सा अपनी तरफ से व्हिच। Sure. So thank you guys for joining in, and I will like to thank first of all ITM Gwalior for inviting me. And it's such a wonderful live session series, I must say, guys, because this will give you so much knowledge. Otherwise, आपको नहीं मिल सकती. And trust me, guys, nobody is available. And I mean, I know the effort what they are doing, Preeti and Mani. So they are doing extremely well. Thank you so much. And about me, so guys, I am Shashank Jain, father of 2 naughty boys, married to a beautiful soul. I'm an engineer turned interior designer who came back from London just to my follow passion about interiors. I really like interiors and I wanted to do something in the interior industry. And when I came back from London, so it was a big gap in India. I found only a high-end interior designer was there, or either a local carpenter was there. So there was nobody in between who can help you design a beautiful home or an office within that same affordable cost. And that was a big challenge. So I thought of taking this to the further heights and start doing something about it. ग्रेट ग्रेट। इसीलिए सर हमको बहुत अच्छा लगा था शशांक जी कि तुम्हारे 2-3 लाइन पढ़ा ना मैंने बोला ये सबसे है अफोर्डेबल। इंडियन वो वाला मेंटालिटी ना, अफोर्डेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक what are the expected office design changes you see foresee, है ना? आजकल अब देखो कुछ टाइम में हमारा भी ऑफिस चालू होने वाला है, so definitely there will be lot of changes. Then one more question is that will technology play a role in making the office a COVID safe place for co-workers? Will you really, मतलब do you really think that India will be able to do it? और बहुत सारी चीजें और हैं, और चेंजिंग आइडिया ऑफ ऑफिस स्पेस डिजाइन फ्रॉम क्यूब्स, पहले क्यूब्स थे है ना, फिर ओपन स्पेस आया, फिर वी विल बैक टू क्यूब्स। तो पहले आप इस बारे में बात करें, क्योंकि सो मेनी इंटीरियर स्टूडेंट्स आर देयर हु वुड लव टू, एंड इवन अपार्ट फ्रॉम इंटीरियर स्टूडेंट्स आल्सो एज वर्कर हम लोग भी तो जाएंगे अब ऑफिस में, तो दैट आई थिंक वी हैव टू नो दिस। That's a wonderful question, Mani, because as you said, COVID के बाद ना lot of things have changed, and I foresee a lot of changes. So first of all, let's talk about the idea of an office, right? So पहले, if you remember, offices were supposed to be private cabins, and there were few people sitting outside, and generally the boss was inside. But then came the co-workings. Co-workings ने क्या किया? सब कुछ open कर दिया. Everybody was on the same floor, without partitions, without boundary. But now what I feel after COVID, because of the social distancing and all that, so people will again go back to that same space where प्राइवेट केबिन्स भी हो जाएंगे, ऑफिस जो ओपन ऑफिसेस थे उसके अंदर भी बैरियर्स लग जाएंगे, उसके there will be situations where two people sitting aside will be having a 2 meter distance, which is the government rule. And this was there earlier 10 years back when there was no co-working. You remember because I remember when I used to see offices 10 years back, so we used to say, okay, 100 square feet में let's say 1 or 2 people capacity बनानी है लोगों को बैठने की. That was the idea. But now when co-working came and we designed so many co-workings, the idea was, अच्छा 50 square feet में how we can have 5 people. That was the idea which came into the mind, right? And everybody was after my life, all of my clients, oh Shashank, I want to have best utilization of the space, so on and so forth. अब बताओ और space कैसे squeeze in करें? Now the same client are coming back to me saying, Shashank, you were right, अब इसको बड़ा कैसे करें? नहीं, वो बिल्कुल ये बात सही है जो तुमने बोला, क्योंकि याद है हम आज भी अपने नाना दादा के जो घर है वो हमें आज भी याद है, वो एक बरांडा होता था है ना, उसके बाद उसमें पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पेड़ भी होता था, और स्पेसेस बड़े बड़े रूम्स होते थे, और मतलब घूमने फिरने का काफी स्पेस होता था। वो स्पेस पे हमें उसमें भी याद है
स्कूल में भी जो टीचर के होते थे ना, अलग अलग केबिन होता था, करेक्ट स्पोर्ट्स का अब सारा एक स्टाफ रूम कर दिया है, तो ग्रेट। करेक्ट। हाँ So that was one, and second, what I feel is decongestion. मतलब अभी क्या होने लगा था? So whether it is school, whether it is college, whether it is office, lot of places were congested, right? So ज़्यादा से ज़्यादा students, ज़्यादा से ज़्यादा लोग same office में, ये capacity बनने लगी. But now I will feel कि अब now ना efficiency will increase. Now people will start trying to decongest. Now they will say, अच्छा, how can I get more people? Okay, occupying, but maybe some people can work from home, some people may come to office, some हाँ people may work from somewhere else, so that the idea of efficiency will increase within that same space. So अब again फिर again वही इसी concept पे वापस आ जाएंगे, जब वो होगा तो उसके बाद obviously offices में उतनी space की requirement नहीं होगी, because I've already start seeing in commercial spaces in Bombay, Noida, in Chennai, lot of companies are like just decongesting their office. Either they are letting their lease go, or what they are asking is asking their employees to work from home. You don't have to come to हाँ ट्रू। office. You can work from home. हाँ मेन ये है कि काम होना चाहिए। Now what's gonna be is, so efficiency increase होने लगेगी. जो लोग सोचते नहीं थे, जैसे interiors in our industry, I haven't opened my office for last 3 months, but all of my designers, all of my clients, everybody is working. How we are working? We are working from home, and we have never या ever imagined that. Specifically interior ट्रू industry में तो ट्रू। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि घर से काम कर सकते हैं. हमने टीचिंग इंडस्ट्री में नहीं सोचा था। Absolutely. एंड वी आर वर्किंग, है ना, वर्क फ्रॉम होम Yes. कर रहे हैं। एंड आई वाज टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स ओनली, टेकिंग फीडबैक। तो रिया, हमारे जो प्रैक्टिकल वर्क है वो थोड़ा हमें सफर करता है, बट थियोरिटिकल आर वी आर कंप्लीटली डूइंग फाइन विद, वी कैन स्टिल आस्क स्टूडेंट्स टू रिमेन एट होम फॉर कपल ऑफ डेज वीक में ना, और अपना थियोरिटिकल क्लास, फॉर प्रैक्टिकल दे कैन कम टू कॉलेज एंड ऑल। ये हाँ, ये चेंज एब्सोल्युटली ये ठीक है। इसका मतलब क्यूब्स वगैरह और थोड़े से हो जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। और स्पेस मिल जाएगा. सो अभी अभी जब आप ऑफिस वापस जाओगे तो या अपना केबिन में वापस जाओगे तो यू विल सी, अच्छा, यू हैव मोर ओपन स्पेस, कम लोग दिख रहे हैं. और थोड़ा सा क्लीनलीनेस में भी लोगों को थोड़ा सा ना इंटरेस्ट आएगा, व्हिच करेक्ट इज वेरी करेक्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। करेक्ट. एंड अच्छा, सेकेंड द क्वेश्चन पर वाज अबाउट द डिजाइन ना, ऑफिस का डिजाइन का ये आपका हाँ क्वेश्चन था. तो आई फील उसके अंदर भी देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस दैट विल हैपन, बिकॉज so what we started doing as designers are, so whenever I'm thinking of designing an office, what I'm thinking is I'm going to a hospital, I'm visualizing a hospital, how they are disinfectant. मतलब वहां पर भी तो इतने सारे वायरसेस होते हैं, वहां पर भी तो इतने सारे आई मीन प्रॉब्लम्स हैं. सो उधर डिजाइन में अपन क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू map those designs to offices now, how we can use those materials which can be de-infectant, which will not catch viruses so soon. maybe carpets को हटा दें, carpets में बहुत ज्यादा bacteria and dust होती है, why not we use something else? या ट्रू। Maybe these kind of models will start coming up, because as designers our job is, I mean, I will request everybody in your team and in your class and everywhere, if you are a designer, the idea of designer is not just putting your ideas into customers mind. Your idea is to make sure you're functional and you're aesthetic. सबसे जरूरी हाँ है functionality, ट्रू। उसके बाद एस्थेटिक आता है. एस्थेटिक अगर पहले आ गया, फंक्शनैलिटी का कोई पर्पस नहीं होगा फिर. हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल सोचना पड़ेगा, ट्रू। ये तो और ये जो अपकमिंग डिजाइनर्स हैं, अब इनके लिए काफी बड़ा चैलेंज भी है। और अब उनको उस तरीके से भी सोचे, क्योंकि मालूम है जब हम डिजाइनिंग के बारे में बोलते हैं ना, तो बहुत बच्चों को मालूम क्या रहता है कि कुछ भी हो, मतलब बहुत ही फंकी होना चाहिए सारी चीजें। उनको ये समझ में नहीं आता कि सिंप्लिसिटी और मतलब ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी देखना चाहिए, ये सारी चीजें। तो अभी उन लोग को ये भी समझ में, और अब सबसे बड़ी बात तो अब डिजाइनिंग करते वक्त ये सारी चीजें भी माइंड में रखना है आप। करेक्ट करेक्ट. अभी हाँ अपना मैं बोलूंगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आई विल ऑलवेज सी अ प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी. समहाउ मेरा ब्रेन उसी तरीके से ट्रिगर करता है. एंड बिल्कुल। बिकॉज मैं काफी समय लंदन में रहा ना, तो वहां पर मैंने क्या होता है, हाउ ब्रिटिशर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अस, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द सोल्यूशन, दे डू नॉट थिंक Yes. अबाउट द प्रॉब्लम. सो whenever there is a problem, there is always an up ahead way. उनको पता है कि नया सोल्यूशन क्या लाना है, वो उसी के बारे में सोचेंगे. तो हाँ सिमिलरली अभी मुझे लगता है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना नए डिजाइनर्स के पास, या जो अभी लोग फ्रेशर्स हैं, जो अभी निकल रहे हैं स्कूल से बाहर, बिकॉज दे आर नॉट कैरिंग दैट बैगेज.
दैट बैगेज बिल्कुल ऑफ एन एक्जिस्टिंग लाइक उनका बॉस कुछ बोलता था या वो पर्टिकुलर डिजाइन को कॉपी करना होता था, अब दिस विल हाँ गो अवे. Now बिल्कुल everybody is on the same plate, whether he's a 20-year-old designer or whether he's a 50-year-old designer. बिल्कुल 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 ये जो Everybody आप has to start. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब इनके पास इतना नया वो थॉट है ना अब, और इन लोगों को थोड़ा सा डर भी लग रहा है अभी कि पता नहीं कैसे काम होगा. बट ये अच्छा है कि मैं भी इस बारे में बहुत विश्वास करती हूँ, आई डू द सेम. मैं ये बोलती हूँ कुछ भी हो गया हो, मुझे ये बताओ सॉल्यूशन क्या है. Correct. आप कुछ भी करो, आपके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए. अगर आपसे टूट गया कोई चीज, उसके बाद में मुझे सॉल्यूशन बता दो. एंड क्या हो रहा है मुझे उससे, हाँ हो गया तो यू लर्न इट, बट जस्ट गिव मी वन सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगर आप बैठे रहो उसी के ऊपर तो नॉट वो. देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट यू नो, अभी बहुत ज्यादा ये है, अभी हम जैसे ही जाएंगे बहुत सारे मीटिंग्स होंगे और आप लोग भी करेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम्स एंड ऑल दैट. Correct. इन सब में social distancing, how you know it is possible to do it, or will there be some changes? उसका जो जगह है उसी को चेंज करना पड़ेगा. what will be there? या मतलब I cannot imagine myself wearing all that PPE kit. I would rather prefer this Zoom meeting then. I know. I know, and this is the fear everybody has, Mani, because I feel conference rooms में ना, I remember the conference rooms where 20 people are sitting in one room or maybe 15 people are sitting in one room, and this will not happen now. What I feel is अब now everything will go contactless. So चाहे वो लाइट ऑन करनी है तो भी वो एलेक्सा और गूगल से हो सकती है, या आपको कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, या जो लोग को की जरूरत नहीं है मीटिंग में, दे कैन वर्क फ्रॉम होम. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग्स, गो टू मीटिंग्स, कॉन्टैक्टलेस फर्नीचर एंड डिस्टेंसिंग will be the new norm, and whether we like it or not, we have to live with it for another at least 2 years, 3 years. This will be there. हाँ मुझे ऐसा लगता है ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल है ये बहुत सही है. मतलब जो आपका, क्योंकि इससे क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन रहता है, और मालूम है ऐसा लगता है कि 1-to-1 कॉन्टैक्ट है, तो यू आर यू नो बहुत आप सीरियस भी रहते हो और उसको अच्छी तरह से सुनते भी हो. अगर किसी को काम भी करना है तो वो अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि अब कॉन्फ्रेंस में जब हम बैठते हैं ना 4-4 घंटे की मीटिंग में, तो जो हमारा कंटेक्स्ट नहीं होता, उसमें नहीं होता, तो उस टाइम हम काम भी नहीं कर पाते. यहाँ एटलीस्ट आप बैठ के सुनते हुए आप अपना काम भी कर पाते हो. दिस इज वन थिंग. और वही मैं बार बार बच्चों से बोलती हूँ कि आप इसे डर नहीं सकते, क्योंकि इसके साथ आपको रहना पड़ेगा, है ना. यू हैव टू लर्न, आपको अपने हैबिट बनाना पड़ेगा इसमें. तो चाहे डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग आप ऑफिस के, आपको ये घर के लिए भी सोचना पड़ेगा, घर के लिए भी सोचना पड़ेगा. एंड आई वाज अबाउट टू से दैट. सो अभी ना जितना डर ऑफिस में है ना, उससे ज्यादा डर घर में है. So बिल्कुल फिर बिल्कुल भी ऑफिसेज में तो फिर भी there are norms, there are practical things which we follow. रूल्स हैं. घर में तो कोई रूल ही नहीं है. हम पजामा में भी बैठे हैं और हमारे यहाँ मेड भी आ रही है और हमारे यहाँ कोई भी आ रहा है. And that will happen and he cannot stop it. मतलब शुरू के 15 दिन तो बहुत मजा आया घर का काम करने में. 15 दिन के बाद लगा नहीं नहीं आंटी आप आ जाओ. आई कैन नॉट डू इट, मेरे से नहीं होगा. क्योंकि और ऊपर से जब ऑफिस का है तो हम बोलते भैया हम तुमसे सब क्लीन करवा लेंगे, तुम आ जाओ. ऑफिस 9 to 5 का काम करना पड़ता, आकर कुछ तो कर जाओ. तो अब वो होता भी है. हाँ बिल्कुल, दैट इज ट्रू. कि उतना ज्यादा ध्यान घर पे भी रखना पड़ेगा. मे बी अभी मैंने एक बुक भी लिखी है मनी, उसके अंदर मैंने वर्क फ्रॉम होम के बारे में और प्रोडक्टिविटी के बारे में डाला. सो मैंने एक स्पेसिफिकली चैप्टर लिखा, हाउ योर ऑफिस शुड बी एट होम. अगर आप घर से भी काम कर रहे हो, दैट शुड ऑल्सो बी इन ऑफिस. इट कैन नॉट बी अ बेड, इट कैन नॉट बी समवेयर इन द लिविंग रूम. इट हैज टू बी अ प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस. चाहे वो कितना भी हो, छोटा है भले ही वो 5 फुट का है, भले ही वो 15 फुट का है, डज नॉट मैटर, बट यू नीड दैट स्पेस फॉर योर माइंड टू वर्क, है ना. वो बहुत जरूरी है. एक और चीज भी है, ये मैं पर्सनली आपसे भी पूछ रही हूँ. लाइक हम लोगों ने वर्क स्पेस अपने, जैसे ये सडनली हुआ है, लाइक आई टेक अबाउट माई एग्जाम्पल, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी है ना. तो अब हम लोगों ने कभी भी ड्रीम नहीं किया था, इट वॉज नॉट इन, मतलब थॉट में ही नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज डिजाइनिंग लाइन में आ सकती है या फिर एजुकेशन लाइन में आ सकती है. तो सडनली फर्नीचर वगैरह में कैसा होना चाहिए, जहाँ पे आप 9 to 5 इतना लंबा टाइम करते हो, तो यू नो देयर शुड बी सम एक पैरामीटर जरूर होना चाहिए, है ना. क्योंकि इससे हमारी डैमेज भी तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं उनका आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम हो गया. मेरे तो हाल यहाँ पे पेन होने लगता है, तो यू नो एवरी सेकेंड डे मुझे हीटिंग पैड के साथ रहना पड़ता है. तो उसके लिए भी and absolutely this is a practical challenge Mani, because I say हम लोगों को आदत नहीं है. वैसे अभी ऑफिस में होते थे तो मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद घूमते थे या जाते थे, या मे बी आउट फॉर
go for tree or we do whatever. But घर में तो नहीं कर सकते. घर में you have to be in the house. Now what you have to do is you have to be talking about three main elements. One is ergonomics, आपका ऑफिस चेयर का डिजाइन या आपकी बेड की सिटिंग पोजीशन या आपकी सिटिंग पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. सेकेंड इज योर एक्सरसाइजिंग. भले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, भले ही आप पूरे दिन में कुछ भी नहीं करते हो, गिव 5 या 10 मिनट्स और 15 मिनट्स टू योर बॉडी टू एक्सरसाइज, टू वार्म अप दोज सेल्स. भले ही हैंड का है, आईज का है, देयर आर सो मेनी वीडियोज अवेलेबल विच पीपल कैन डू. एंड द थर्ड थिंग इज आई विल से इज सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ. तो आपको ये खुद ध्यान रखना है व्हाट इज योर स्क्रीन टाइम. अब ऐसा तो नहीं है हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको हैबिट है अपना फोन उठाने की या बार बार आपको लैपटॉप खोलने की. सो यू हैव टू सेट योर टाइम स्लॉट्स कि मुझे जैसे मैं करता हूँ. सो आई हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट शेड्यूल एंड आई ट्राई टू फॉलो इट. सो व्हेनेवर आई वोक अप आई हैव माय 1 hour where I think about my growth, when I think about my day, what I have to do on the day. And then when my office starts 9:30, I have my slots. उन्हीं slots में मैं काम करता हूँ. जहां मुझे आधा घंटा ब्रेक लेना है तो ब्रेक लेना है. I don't touch my phone then. So this is how we have to do. So we have to realize. ये तो बिल्कुल आई अग्री विद दिस बिकॉज जब हमारे 1 महीना था ना तो वो मतलब 15 दिन तो ऐसा था शशांक, मुझे ये समझ में नहीं आता था करो तो क्या करो. कभी इधर दौड़ रहे हैं, फिर झाड़ू लगा रहे हैं, फिर पोछा लगा रहे हैं, बीच में फिर कुछ काम कर रहे हैं, फिर ये वो, फिर धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाता है. देन आई थॉट कि नहीं, एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड समहाउ आई हैव टू टेक आउट दिस टाइम. तो Yes. कुछ टाइम प्लांट्स के साथ बिताओ, कुछ टाइम ऐसा ना, नहीं तो आप इधर रहते मतलब 9 to 5 से ज्यादा कभी कभी रात के 11 बजे तक हमारा टाइम हो रहा होता है. Absolutely, बिल्कुल हो जाता है क्योंकि अब लिमिट तो है नहीं. पहले तो क्या ऑफिस से निकलना है 6 बजे या 7 बजे, we have to go out. Today there is no limit. 24/7 you are online. और कहीं जा भी नहीं सकते. पहले तो फिर भी देर होता था कि चलो वहां तक चले जाए. चले जाएंगे. अच्छा, तो वो Yes. एक टाइम है. बहुत ये पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है. आई ऑलवेज टेक थिंक पॉजिटिव वे ओनली. पॉजिटिव ऑल्सो. एंड आई विल से कि अब जैसे कि ना कमिंग बैक टू द ऑफिस डिजाइन, आई विल से कि अब जो वॉशरूम्स होंगे ना मनी, उसके अंदर भी देखना कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा. सो अभी तक हम क्या टैप्स को हाथ लगाते थे या हम फ्लश प्लेट्स को हाथ लगाते थे या वी यूज्ड टू टच द डोर. अब नाउ दिस विल चेंज. Up now you realize this out of a sudden, and one of our company, Doorset, they approached me and they said, Shashank, we are thinking about this product. What are your thoughts? So मैंने उनको बताया, अच्छा we can do this kind of thing in our product और उसको बढ़ा सकते हैं. We can use a touch based or a contactless kind of a door handle, and they really like the idea. So they launched a product. So think That's about. great. So उन्होंने सोचा, उन्होंने प्रोडक्ट निकाल भी दिया बाजार में. It's out. And this is what we have to do. So we have to move on. The question is, how fast can we implement that change? We have to be very fast on it. हाँ बिल्कुल. और मेरे को लगता है कि अब जो नए नए इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा टच में रहना चाहिए और स्टडी करते रहना चाहिए क्या क्या नई चीजें आ रही हैं एंड व्हाट दे कैन एडवाइस पीपल ऑल्सो. कि एक दया शर्मा का देयर इज अ क्वेश्चन, क्या है, not practiced and came out to be more productive and cost saving. Meanwhile, some people are facing problems to deal with routine and personal discipline. दया, इस क्वेश्चन को जरा अच्छी तरीके से और फ्रेम करके कर दो जिससे कि हम ना उसको आपके क्वेश्चन को ले सके. तब तक हम आगे आते हैं. एक और क्वेश्चन था जो परिधि ने पूछा है, what one should keep in mind the most important factor in offices now after this pandemic. So the most important factor is how do you keep yourself safe. सबसे पहला पैरामीटर. अगर आप सेफ हो तो आपके अराउंड लोग सेफ हैं, आपका ऑफिस सेफ है और आपका बॉस सेफ है. And you can make others safe also. Others safe also. So the first priority which I realized Mani in the lockdown is we underestimate ourselves. We underestimate our human body and we do not give time to ourselves. We do not love ourselves. मतलब मैं किसी और से प्यार करता हूँ या मैं कुछ और चीज के बारे में सोचता हूँ, but I do not love myself. So first thing what you have to do in the lockdown or maybe after the lockdown when you go to your space, you have to love yourself. You have to protect yourself. सबसे पहला काम. And then you think of protecting your office, then your space, then your people and other stuff. वैसे तो अगर हम ये एक चीज को फॉलो कर लेंगे तो शशांक जरूरी सभी कुछ फॉलो हो जाएगा, है ना. क्योंकि मुझे याद है मैं जब
बहुत ज्यादा, मैं हमेशा मतलब इट्स बीन more than 6 years नाउ आई एम यूजिंग सैनिटाइजर एंड ऑल दैट, और मेरे हर रूम मतलब क्लीन वो रहता है। तो मेरे घर वाले से मेरे फ्रेंड से लेके सब लोग मुझे बोलते थे, तो देखो यही है, इसी को कुछ तो आज कल ही मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि देखो हम आपका मजाक उड़ाते थे, आज ये चीजें सबसे ज्यादा वो हो रहा है। तो मैंने बोला भाई मुझे तो ये मालूम है कि आई लिव अलोन, ठीक है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो उसी के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि कल को मैं बीमार हो गई तो मैं थोड़ी ना सबको बुलाती रहूंगी प्लीज टेक केयर ऑफ मी। करेक्ट करेक्ट। इसलिए ये, और ये शायद बहुत मतलब इसका अगर सब लोग पॉजिटिव वे में सोचे तो ये बहुत अच्छा है कि आदमी अपने आप को सेव करेगा, क्लीन रखेगा और आगे भी सोचेगा। मतलब ये है कि अपने लिए सोचो और अपने आसपास के भी सोचो, इतना ही सोच लोगे तो हाँ इतने में ही बहुत कुछ हो जाएगा, काफी कुछ हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि 80% ऑफ आई रिमेम्बर द पेरेटो प्रिंसिपल, हम सब लोगों ने अपने कॉलेजेस में स्कूल में पढ़ा होगा कि हमारा 80% ऑफ जो टाइम और एफर्ट है ना वो वेस्ट है। हमारे सिर्फ 20% जो हम करते हैं ना वही हमारे सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देता है। सो नाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गिव टाइम टू आवरसेल्फ टू सेव, कीप गार्ड आवरसेल्फ, सेव करो अपने आप को पहले। हाँ। इसके बाद है रिचा का क्वेश्चन है, सिंस द वर्ल्ड इज रीलिंग अंडर अ ग्लोबल क्राइसिस caused by the COVID-19, what will be the plan of action for the future and how will interior and architecture become a spark of economic growth? It's a wonderful question, Richa. I mean, this is really amazing. So, and the question is really bang on. Why I'll say this? Because आज ना और भी ज्यादा नीड है अच्छे डिजाइन्स की, अच्छी ज्यादा स्पेस प्लानिंग की। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले या मे बी 3 साल पहले कुछ लोग इग्नोर कर देते थे टियर 2 या टियर 3 सिटीज में, आई विल से, एंड दे विल नॉट हायर अ डिजाइनर और एन आर्किटेक्ट टू डू देयर होम ऑफिसेज और देयर ओन स्पेस। उन्हें लगता था कि कारपेंटर है, उसको तो सब कुछ आता है, काम तो उसी को करना है, वो कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर एक्चुअली में एक डिजाइनर या एक आर्किटेक्ट, व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल इज द राइट प्रैक्टिकल डिजाइंस एंड ऑल्सो व्हाट यू कैन यूज। कितनी स्पेस को आपको यूज करना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं। सिर्फ मुझे पैसे बनाने के लिए स्पेस यूज नहीं करना, मेरे को अपना बिल बनाने के लिए स्पेस यूज नहीं करना, मेरे को स्पेस को यूज करना है सो दैट आई कैन रियली गिव यू दैट प्रैक्टिकलिटी, दैट फंक्शनैलिटी टू यू। This is where interior architecture will play a more bigger role now. Everybody, I would say, will try to hire a designer or an architect if they can afford, so that they can use the best possible space and also keep guard themselves. Save करें उन्हें, अपने आप अपने ऑफिस के डिजाइन को सेव करें, फायर प्रूफ करें। आग लग जाती है, कोई और पेंडेमिक आ जाता है, कोई और अर्थक्वेक आता है, तो वहां से कैसे बाहर निकलेंगे? All these things will come in. और ये एक नॉर्मल कारपेंटर या एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर नहीं बता पाएगा। दिस इज वेयर एन आर्किटेक्ट स्टूडेंट और एन इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट विल कम इनटू द प्लेस एंड दे विल ब्रिंग इट टुगेदर। हाँ, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिमांड भी हो जाएगा। जैसे अभी धीरे धीरे, जैसे पहले हमारे टाइम पे, आई स्टिल रिमेम्बर पीपल यू नो दे यूज्ड टू हायर कारपेंटर ओनली, कि करता रहा ये, और आज भी बहुत लोग करते हैं। बट आज जब घर वर में शादी वादी भी होती है ना, तो एंड दे आर हायरिंग इंटीरियर डिजाइनर्स। और अब मुझे लगता है क्योंकि सेफ्टी पर्पस को देखते हुए और चीजों को करते 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 ये लोग, बस ये है कि जो अपकमिंग डिजाइनर्स है उनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके पास नॉलेज हो, है ना, और वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, लोगों से इंटरेक्ट करे, क्या चीजें आ रही हैं। मतलब पुरानी चीज जो पड़ी हुई है उन्हीं को ही नहीं रखे अपने पास। बहुत दे हैव टू स्टडी अ लॉट एंड कीप इंटरेक्टिंग विद यू नो सीनियर्स। और जो मैं इसको बोलता हूँ कि हमारे अंदर ना वो वेस्टर्न स्पार्क आना चाहिए। वेस्टर्न स्पार्क क्या है? वेयर there is a guy, I always tell this story to all of my people around, and whosoever knows me, they know this story. Let's say in America there is a 50-year-old software engineer. What he will do? He will learn every day. He will try to improve himself every day. 50 साल होने के बावजूद, even if he is 30 years down the lines, I mean working in the same industry, he will still learn new technologies. He will still learn नया चीजें। हमारे देश में क्या होता है कि हम, आई एम नॉट सेइंग हम गलत हैं, पर हमारा अपना तरीका है काम करने का, और अब इम्प्रूव भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू मिलेनियल्स। हम ना कुछ समय बाद एक पोजीशन में पहुंचने के बाद लगता है, ओ वाओ यार, दिस इज मी, अब तो मुझे सब कुछ आता है। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, आई डोंट हैव टू लर्न, आई डोंट हैव टू सी, एंड दिस इक्वेशन विल चेंज। Whether it's a 30-year-old designer or a 60-year-old designer, they will all have to learn every day. ये होना भी चाहिए। वो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इवन आई वाज टॉकिंग टू माय डैड, मैं आज तक अपने पापा को, उनको एंड्रॉइड फोन दे दिया है,
और वो आज तक व्हाट्सएप तो चला ही नहीं पाते, ठीक है। अपने टाइम पे मतलब स्पोर्ट्स डायरेक्टर रहे हैं, सब कुछ किया है। उनको बोलो तो उन्होंने 2 दिन पहले वीडियो कॉलिंग सीखा है। इतना वेरी गुड। सिखाने के बाद क्या, एक तो एक एटीट्यूड हो जाता है कि आई एम द बॉस, मुझे सब आता है, और करेक्ट एक एटीट्यूड हो जाता है बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ। जबकि करेक्ट। वेस्टर्न कंट्री का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जब रिटायर होते हैं तब वो दुनिया घूमने जाते हैं, तब यस। वो लोग उनका ना, तब वो नई चीजें ढूंढते हैं, देन दे डू ऑल द, मतलब मैं ट्रैकिंग पे गई थी तो आई फाउंड दिस वुमेन हु वाज अराउंड 60। वो एक लेडी के ओके। साथ आई थी अपनी गाइड के साथ, एंड इतना एंथुसियास्टिकली या वो यहाँ जाने के बाद केरला जाने वाली थी, ये वो, मैंने मैंने बोला कि मैं अपने बुढ़ापे में तो यही इसी तरीके से मैं रहने वाली हूँ। क्योंकि यस, आई ऑल्सो बिलीव इन दिस वन थिंग दैट वी हैव टू कीप लर्निंग। या द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू आर डेड, ये मैं यस। मानती हूँ। सो अभी ना मैं कल ही बिल गेट्स की एक स्टोरी पढ़ रहा था और मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा लिंक्डइन पे मनी। एंड हम्म उस स्टोरी का पता है सबसे बड़ा की पॉइंट क्या था? टाइम इज कांस्टेंट। इट इज हम्म देयर 24 आवर्स फॉर एवरीबॉडी, इवन फॉर बिल गेट्स, इवन फॉर जेफ बेजोस, इवन फॉर यू, इवन फॉर मी। हाउ वी यूज these 24 आवर्स इज द की टू सक्सेस। यस, सबके यही है। पास वो 24 घंटे हैं। हाँ, दया ने क्लियर किया है। दया का मतलब है वर्क फ्रॉम होम, है ना। जैसे कि वर्क, जैसे हम लोग बात कर ही रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम इज, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन एज सच। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टेइंग अलोन, है ना। पर्सनल डिसिप्लिन भी होता है सब, एंड रूटीन, बट रूटीन गेट मेस्ड अप। दिस इज अफेक्टिंग मेंटल स्टेबिलिटी। तो ये वैसे तो इट इज नॉट वेरी मच रिलेटेड विद इंटीरियर, बट आई नो दिस इज पूरा क्या बोलते हैं पार्ट, मतलब हो गया है। तो ही इज आस्किंग कि इसमें मेंटल स्टेबिलिटी है, तो ये कुछ सजेशन चाहते हैं। नहीं, that's a very good question and very close to my heart because हाँ, I keep on following lot of mental well-being principles. तो मैं ना बहुत इसके ऊपर स्टडी करता हूँ and I try to improve lot of designs accordingly. So मैं बोलता हूँ there it's a very good question. वर्क फ्रॉम होम से डेफिनेटली ना डिस्ट्रेस बढ़ गया है। आई बहुत विल से ज्यादा, बहुत बिकॉज ज्यादा। आप एक ही जगह बैठे रहते हो, आपको लोगों से फिजिकल इंटरेक्शन बंद हो गया है। बिल्कुल, एंड एक हाँ। ना हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमें आदत नहीं है 4 घंटा 5 घंटा लैपटॉप के सामने कंटिन्यूसली बैठने की या मे बी वीडियो कॉल पे रहने की। बिकॉज हम्म, आप अगर घर पे तो डेफिनेटली आपका बॉस या आपके सीनियर्स चाहेंगे कि आप उनको रिपोर्ट करो बार बार, उनको बताओ आपने क्या किया। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिस्ट्रेस इज हैपनिंग। द सोल्यूशन टू दिस इज यू बी काम। यू, जैसे मैंने अभी पहले बोला था, लव योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखो कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, मेरी इंटेग्रिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भले ही 2 घंटा काम कर रहा हूं या 4 घंटा काम कर रहा हूं, मैं अच्छे से कर रहा हूं। अगर हम्म। आपका इंटेंट क्लियर है, अगर आपके अंदर एनर्जी क्लियर है, तो आपके अराउंड एनर्जी भी वही होगी, आपके लोग भी वही सुनेंगे, आपके बॉस भी वही मानेगा, सब कुछ वही होगा। अगर आप अंदर से प्योर एंड क्लियर हो तो बाहर मतलब ही नहीं है कोई आपको गलत समझे। और जिसको हाँ, समझना है उसको समझने दो। यू सी के 90% पीपल आर देयर विद यू, फॉरगेट अबाउट 10% पीपल। हाँ, क्योंकि मैं एक दिन अभी अपने फैकल्टी से ही बात कर रही थी, बिकॉज आई वॉज फीलिंग द सेम कि थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो मैंने उससे यही बोला था कि आई डू अंडरस्टैंड, सर पे अभी 100 काम है, ठीक है, 10 काम है, चलो 10 काम में से तुम्हें लगता है कि तुम 10 नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आज के लिए तुम 8 रख दो, पर जो 2 करेक्ट। करो वो एफिशिएंटली करो, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ। और हम समझते हैं अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, कभी कभी हमारे जब वर्किंग में जा रहे होते हैं तब भी तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, एंड देन वी डोंट वर्क ऑल्सो, है ना। तो करेक्ट। इसको बहुत, और जो शशांक ने बोला था उस बात को मैं बहुत मानती हूँ। everybody should include some sort of exercise and peace of mind related thing, जो आउटडोर हो सकता है, आउटडोर मतलब आपके छत में भी हो सकता है, वो आपके बालकनी में भी हो सकता है गिविंग योरसेल्फ 30 minutes टाइम, है ना, जिसमें आप कॉफी भी पी रहे होगे, और इफ यू आर रीडिंग समथिंग, डू समथिंग, बिकॉज वेन एवर आई फील इतना स्ट्रेस आउट, आई गो एंड आई स्पेंड टाइम विद माई प्लान्स, ठीक है। आई यस। टेक आउट 1 hour और हाफ एन आवर, अगर कुछ नहीं होता तो आई टेक आउट हाफ एन आवर टू एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे पूरे दिन भर की एनर्जी चाहिए। तो दी स्मॉल थिंग यू शुड डू, बिकॉज हम लोगों को क्या है ना, हम जैसे लाइक आई तो अब तो ओल्ड एज की तरफ जा रहा है, सो आई टेल दिस कि हम लोगों के साथ हमने ये सारी बहुत सारी चीजें देखी हुई है ना, तो हम वो स्ट्रेस को ले पाते हैं। जो यंग जनरेशन है ना, कॉलेज से आया होता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रेशराइज फील होता मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, बट आई विल से दया को या जिसने भी पूछा था क्वेश्चन में भी दया ने पूछा था, हाँ और दयान। बाकी लोगों स्पेशली जो यंग किड्स है ना मनी, मैं उन सबके लिए बोलना चाहता हूँ बिकॉज आई सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द यंग किड्स नाउ।
Yes. What you should do is, अगर कोई problem है ना, please talk to somebody. Yes, Do not this is keep that to something. yourself. Yes. हाँ. I mean, talk to ये your seniors, talk to your class teacher, talk to your whosoever, friends. हाँ, बिल्कुल. Because जब हम बात करते हैं ना, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं. अमूल्य पूछ रहा है, ये हमारे मतलब बहुत अच्छा लगता है जब मेरे ना पास आउट स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग. हाँ, बहुत अच्छा. और वो भी, हाउ डू वी इम्प्रूव अवर डिजाइनिंग? So, I mean, Amulya, this is a very big topic. I mean, I might need to have another 2-3 hours session just on improving our नहीं, designs. आपको मैं पकड़ूंगी अपने बच्चों के लिए सिर्फ, एंड यू हैव टू गिव देम 1 hour का तो एक लेक्चर. No worries. So, मैं बोलूंगा अमूल्य, the best part of design is कि it is supposed to be functional and aesthetic. अगर आपके दिमाग में जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो या किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे हो ना, अगर ये है मुझे उसको चीट नहीं करना है और उसके लिए जो बेस्ट है वो उसको देना है, सो ट्रस्ट मी, पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी प्रॉब्लम होगी, चौथा क्लाइंट पता है क्या बोलेगा? अमूल्य, आई लव यू, जो आप कर रहे हो यही करो, आई डोंट केयर. पर डिजाइनिंग कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, इनके जो डिजाइनिंग स्किल्स है? सो डिजाइनिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो आई विल से लर्न एंड रीड. तो मैं बहुत टाइम नए नए डिजाइन को पढ़ने में, नए नए डिजाइन को ढूंढने में टाइम स्पेंड करता हूँ. और द बिगेस्ट एडवांटेज आई विल से इज go to any website, go to Google, go to Pinterest, anywhere. Take a design and spend 15 minutes on that picture. I always do that. कि इस पिक्चर में 15 मिनट स्पेंड करके ये देखना है कि क्या किया, क्या मटेरियल यूज किया होगा या इसको किस तरीके से बनाया होगा. तो मैं उस 15 मिनट में उस पूरे डिजाइन को विजुअलाइज करता हूँ अपने दिमाग में. जब मैं वो करने लगता हूँ तो उसका डिजाइन का थ्रेड बाय थ्रेड मेरे सामने आ जाता है. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सही भी है. ये मैं अपने पार्ट में अपने बच्चों से हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं कोई भी गारमेंट देखती हूँ ना, तो मैं उसे उस तरीके से देखती हूँ कि अगर मुझे इसको बनाना पड़ा तो मैं कैसे बना सकती हूँ, और इसमें जो नहीं बना पाई तो उसका मैं हल कैसे ढूंढूं. करेक्ट. कहीं तो रीजन होगा. इसलिए आपको ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना बहुत पड़ेगा. आपको सिर्फ देख के, ऐसे नहीं कि देख के चलते जा रहे हैं, स्टडी, उसको बारे में सोचो. जैसे शशांक ने बोला, एटलीस्ट स्पेंड 15 मिनट्स इन वन डिजाइन, है ना. और इवनीत का एक क्वेश्चन लेते हैं. दिस गर्ल इज वेरी मतलब अच्छी एक्टिव गर्ल. हमारे ना इंटीरियर के बच्चे बड़े, फैशन के बच्चे थोड़े से ना, एक बोलो ना नहीं तो वो लोग नहीं करते. इंटीरियर के बड़े ना नॉटी होते हैं, बट दे आर वेरी क्रिएटिव. इन्होंने स्क्रैप आर्ट वगैरह से जो बनाया है, मतलब ये जो बैच है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर अभी फ्रेश आ रहा है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, दे आर वेरी इंप्रेसिव. और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ वो करना. तो इसने लिखा होगा इमरीन ने, हाउ कैन आई मेक ऑफिस स्पेस एज ग्रीन एज पॉसिबल? इट्स वेरी सिंपल. द आंसर लाइज विद इन द क्वेश्चन. सो अगर आप प्लांट्स को उसको नेचुरल हैबिटेट में यूज करने लगोगे, मे बी आपने आप छोटी छोटी चीजों को फिल करने लगोगे प्लांट्स के साथ या मे बी ग्रीन आइटम्स के साथ, तो आपका ऑफिस ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है सब जगह पर फर्नीचर रखना. वहां पर एक बीन बैग के साथ एक प्लांटर भी लगा सकते हो कोने में, या मे बी एक हैंगिंग लाइट के साथ 2-3 छोटे छोटे पॉट्स भी रख सकते हो. सिमिलरली डेस्क पे एक शेल्फ और एक्स्ट्रा डाल के यू कैन कीप 2 स्मॉल पॉट्स. So when you start designing this way, when you start thinking this way, it will automatically come up. तो green तो कितना भी डालो कम है, पूरा ऑफिस भी ग्रीन से भरोगे तो भी कम है. हाँ, और आजकल तो इतना मुझे वर्टिकल गार्डन का कंसेप्ट इतना प्यारा लगता है ना. अभी तक मैं अपने में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, मैं बिल्कुल सोच रही हूँ उसको करना, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. देखो डिजाइनिंग ने कितना वो इम्प्रूव किया है कि आप वर्टिकली उस स्पेस को, मतलब कुछ नहीं होते हुए वर्टिकल कितना स्पेस को आप कर लेते हो डिजाइनिंग का. और एक बात मैं हमेशा इन बच्चों से बोलना चाहूंगी कि हमारे बच्चों के साथ मैंने 2 चीजें ना देखी हुई है जिनमें उनको इंटरेस्ट नहीं आता. वन इज फैब्रिक. उनको लगता है फैब्रिक का क्या मतलब है, मतलब हम टेक्सटाइल की क्लास लगाते हैं ना, क्या करना है, मतलब उनको उससे बिल्कुल, मतलब जबकि फैब्रिक प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंट रोल, यू नो. अगर आपके पीछे का ब्लाइंड भी होगा है तो उसे आपने बहुत सोच समझ के लिया होगा. इसी तरीके से प्लांट्स, क्योंकि जब उनको जब स्टडी बोलते हैं तो दे हैव टू स्टडी कि क्या इंडोर प्लांट्स हैं. और जब आप डिजाइनिंग करो तो ऐसा नहीं हो कि आपने मेरे यहाँ ऐसे इंडोर प्लांट कर दिए जो इंडोर प्लांट के लिए नहीं है, और मिट्टी ऐसे डलवा दी जो वाकई उसमें मर जाएगा, जबकि यू नीड समथिंग लाइक कोकोपीट और समथिंग जो उसको होल्ड करके रखे. इसलिए इसका मतलब आई पर्सनली फील, बिकॉज इट्स माई पैशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर प्लांट्स के हैं तो यू हैव टू स्टडी अबाउट प्लांट्स ऑल्सो,
क्योंकि कैसे तुम उस चीज को करोगे, तभी तो आप एडवाइस दे पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 10 दिन में प्लांट लगा और खत्म हो गया। मैं इसका बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, बिकॉज ये ना मुझे बहुत चैलेंज आता था आज से 6-7 साल पहले, जब मुझे लगता था यार ये क्या जरूरत है इसको करने की, मतलब लेट्स इग्नोर हाँ। इट, कुछ भी डाल देते हैं। सो व्हेन आई रियलाइज वन फाइन डे कि अगर मेरे को कोई चीज पता होगी ना, तो मेरे को हम्म, सबसे बड़ी बात, पहले कोई उल्लू नहीं बना सकता, नंबर वन। हाँ। नंबर हाँ। टू, आई हैव more confidence in telling it to my client or my team because I know it. और मुझे शर्म नहीं है पूछने में, अगर मुझे नहीं आता at this हम्म, point of stage of the time where I am running an office of 22 people, 23 people are working with me, हम्म, and I still feel if there is a need to ask question, I will ask that question. अगर मुझे पता नहीं, मैं वेंडर से पूछ लूंगा इसका मतलब क्या है. हाँ, I don't बिल्कुल। feel shy. And this is what it is. I mean, every student, and we have, जैसे हम बोलते हैं ना, everybody has to be student throughout the life. Every day it's a learning. हाँ रोज बिल्कुल है, सीख. बिल्कुल है। हाँ, इसलिए मैं जब, क्योंकि इनका पार्ट रहता है और मैं बोलती हूँ कि मैंने बोला कि मेरा तो फैशन डिजाइनिंग है, मुझे प्लांट से इंटरेस्ट मतलब नहीं होना चाहिए, बट आई लव, और मुझे लगता है कि ये पार्ट है और अब तो आ ही गया है। जितना जितना भी ये जो आज आप देख रहे हो प्रॉब्लम इश्यूज, वो हमारा सारा एनवायरनमेंट से तो रिलेटेड है। अगर हम लोगों ने Correct. थोड़ा बहुत भी ये चीजें, तो हमको एक इंटरेस्ट लाना ही पड़ेगा और आपको भी देखना पड़ेगा कितनी चीजें हैं डिपार्टमेंट में, कैसे हो सकता है। और मैं तो कहती हूँ स्टार्ट विद द डिपार्टमेंट। यू हैव Exactly. एम्पल ऑफ स्पेस, है ना, यू हैव वाटर फैसिलिटी, और आपको ऐसे प्लांट देखने पड़ेंगे जो 3-4 दिन भी अगर आप उन्हें पानी नहीं देते हो तो वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। बट दीज आर बिकॉज इंटीरियर, मुझे आज भी लगता है अगर मैं फैशन डिजाइनर नहीं होती तो मैं इंटीरियर डिजाइनर जरूर होती। आज भी इफ गिवन अ चांस आई वुड लव टू स्टडी इंटीरियर डिजाइनिंग। You come to our office, you start implementing it. I don't have any problem. हाँ, वो तो देखो, इट इज ऑलवेज प्लेजर की जब से भी आपने किया, यू हैव, आज आप में और सामने सामने पहली बार आ रहे हैं, अदरवाइज आप और मैं तो, आप बिना जाने भी आपने मेरे स्टूडेंट्स की इतनी हेल्प की है विद ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट। तो इट्स रियली, आई एम इम्प्रेस्ड। मेरी मेरी जो स्टूडेंट है, देखो मेरे बच्चों से कितना कनेक्शन होता है। पारुल इज माई Correct. स्टूडेंट, सबसे पुरानी I know. स्टूडेंट है ना, एंड वी आर स्टिल कनेक्टेड। तो हाउ शी कनेक्टेड, हम दोनों को कैसे कनेक्ट करवाया, सो Correct. इट्स ऑल डेस्टिनी, एंड दैट इज व्हाई All आई this. लव स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ आई कनेक्टेड। और It's एक a और wonderful, क्वेश्चन, wonderful thing. Yeah. Please. हाँ ट्रू ट्रू, ये है इवनीत का ये क्वेश्चन है, डज इंक्लूडिंग ergonomic furniture while designing office spaces helps in employee work more efficiently? Do you think that? Yes, yes. So there is a science. There is a author called Philip Bray. He's an American guy. And 1952 में ना उसने स्टडी किया मनी इसके ऊपर. What he said is ergonomics play a very very important role in our body posture and also our productivity. अगर हमारा बॉडी का posture ठीक है ना, so there is a chance of 10 to 18% of improving the productivity just by your posture. अगर आप सही से बैठे हो तो 15% ज्यादा काम कर सकते हो. And this is a proven fact, scientifically proven by Harvard. So I mean, हाँ, it plays a very important role, I would say. नहीं, आज वही मैंने बोला कि sometimes people confuse between architects and interior. Absolutely दो पिलर्स और अलग अलग और एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट। एक इंटीरियर उसका उतना ही इंपॉर्टेंट रोल और एक आर्किटेक्ट का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल। कभी कभी उनको लगता है कि नहीं नहीं आर्किटेक्ट इंटीरियर कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, एब्सोल्युटली नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरा बेटा आर्किटेक्ट मैं जानती हूँ वो बिल्कुल नहीं कर सकेगा इंटीरियर डिजाइनर, वो I रखता mean, है। मैं ना बेसिक बताता हूँ लोगों को ना, मतलब और हाँ, हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं बिकॉज आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, वेयर इज माई यंगर ब्रदर अर्पित, ही इज एन आर्किटेक्ट, ही इज एन वही, एमआर्क. हाँ, एंड हम दोनों से लोग पूछते हैं, मैं बोलता हूँ देखो आर्किटेक्ट का ना माइंड इज मोर प्रैक्टिकल. बिल्कुल ही बिल्कुल ऑलवेज थिंक अबाउट प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि उसको पढ़ाया वही गया 5 साल. वेयर इज बिल्कुल फॉर इंटीरियर डिजाइनर इसका दिमाग मोर एस्थेटिकली ब्यूटीफुल है बिकॉज ही इज मोर क्रिएटिव, ही नोज मोर कलर्स, ही नो मोर फैब्रिक, ही नोज मोर पैटर्न्स. तो दोनों को जोड़ने अलग नहीं है, मतलब इनको हाँ, साथ में जोड़ के करोगे तो बहुत अच्छा बिल्कुल होगा. बहुत खूबसूरत हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल और एक उस तरीके। क्योंकि मैंने बोला एक जो फर्नीचर की बात आई है, तो यही है, यही इंटीरियर डिजाइनर का एक फर्नीचर डिजाइन करता है ब्यूटीफुल, कि किस किस तरह आज इतने खूबसूरत फर्नीचर आ रहे हैं कि यू नो अमेज्ड कि पता नहीं कितना आदमी सोचता है, कितना Correct. कम स्पेस के लिए यूटिलाइज होता है या फिर कंफर्ट के लिए। एंड डेफिनेटली अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो आप कभी भी कोई चीज लंबे समय तक कर ही नहीं सकते। मैंने बोला ना, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है और मैं जानती हूँ मेरी फ्रेंड है वो तो उठ भी नहीं पा रही, मुझसे Right. कम उम्र की है, पर मैंने यही बोला
हो गया, बट इंक्लूड सम एक्सरसाइजेस, सम पोस्चर, यू हैव टू चेंज सिटिंग पोस्चर और सारी चीजें, एंड स्लोली स्लोली दिस वे यू विल इम्प्रूव इट. तो ये Correct. एक बिल्कुल जरूरी है. एंड आई होप शी गॉट द आंसर. एंड वन मोर is the influence of mental and physical health in design will increase tenfold by Vasu Basal. So, I mean, I will say, if the question is clear to me, so she is asking about mental well-being and Vastu connected hai ki nahi? Is that what she's asking? Hmm. Maybe. Influence of mental and physical health in design will increase tenfold. In Vastu. So, okay. Haan. So, yes, mental well-being plays a very important role, as I already said. And Vastu also has a very big impact on that. So, हमारी जो आसपास की energies है ना, Mani, and for all the people who are watching it, is very important. अगर मैं internally productive और positive हूँ, तो मेरे आसपास का environment भी productive and positive होगा. अगर मैं अच्छे वास्तु environment में हूँ, तो definitely मेरे आसपास की surroundings भी अच्छी होंगी. For example, तो कई बार ना हम बहुत लेजी उठते हैं, हमारे को लगता है कुछ काम नहीं करना, आज कुछ भी करने का मन नहीं करे, तो आप विजुलाइज करोगे वो पूरा दिन खराब जाता है. तो यू आर ऑलमोस्ट एट जीरो प्रोडक्टिविटी और एट अ वेरी लोअर स्टेज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ योर टाइम. वेरएज किसी किसी दिन ना आप बहुत चार्ज अप होते हो, आप बहुत अच्छे से उठते हो, आप बहुत अच्छे से मूव ऑन करते हो, आप देखोगे उस दिन को ना आप 10 गुना ज्यादा यूज करते हो. तो अगर आप अपने आप को देखोगे कि यार 2 दिन पहले शशांक आप इतना यूज कर पा रहे थे अपने आप को, और 2 दिन बाद आप इतना लो क्यों फील कर रहे हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट, आवर एनर्जी अराउंड अस. सो आई विल से मेंटल वेलबींग. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में लड़ाई करके आए हो ना हस्बैंड से या वाइफ से, तो आई एम श्योर कॉलेज में आके या ऑफिस में जाके आप झगड़ा ही करोगे, मूड खराब ही रहेगा. खराब ही रहेगा. अगर आप घर से अच्छे होके आए हो तो ऑफिस और उधर जाके भी आप अच्छे ही रहोगे. अच्छा, एक बात बताओ, इसी से मुझे वास्तु से याद आया, दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन की इज वास्तु वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्लेज अ रोल इन डिजाइनिंग और हाउस में हम सबको क्या इसका ख्याल रखना चाहिए? So I will say, मेरा अपना take है, I might be wrong because this is a personal take I have and not to be quoted anywhere. Vastu is important for sure and I try to follow all the basics of it. कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में क्या होना चाहिए, ईस्ट में क्या होना चाहिए, वेस्ट में क्या होना चाहिए, फायर कहाँ पर होना चाहिए. आई डोंट गो टू डीप इनटू इट, लाइक कि ग्रीन के साथ ब्लू कलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ब्लू के साथ व्हाइट मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए. बट आई डेफिनेटली फॉलो द बेसिक्स बिकॉज आई फील अगर मेरा क्लाइंट अच्छा खुश रहेगा तो वो मुझे 4 जगह रिकमेंड करेगा. अगर उसका वास्तु खराब रहेगा तो वो पक्का झगड़ा करेगा और बाद में मेरे को बोलेगा यार तूने मेरा घर खराब बनाया. तो इसका मतलब जिसको हम लोग भी थोड़ा बहुत वास्तु पढ़ सकते हैं, इसका मतलब है ना, और उनके हिसाब से करना चाहते हैं. आप ना अपने इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट्स को, बल्कि मैं एक और कॉलेज को बोल रहा था कि यू शुड मैंडेटरीली हैव एटलीस्ट 1 or 2 क्लासेस ऑन द बेसिक्स ऑफ वास्तु. अगर आप बच्चों के दिमाग में अगर आप बच्चों के दिमाग में अभी से वो सीड डाल दोगे ना, सो टुमारो व्हेन दे बिकम अ हाई क्वालिफाइड डिजाइनर दे नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू. तो इसका मतलब वास्तु को कितना पार्ट हमें रखना चाहिए? मतलब कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा वास्तु में होते हैं. दैट्स अ पर्सनल थिंग नो मनी, बिकॉज किसी को बहुत ज्यादा चाहिए, बट मैं बोलता हूँ कि 20 से 30% अगर आपका दिमाग वास्तु के अराउंड चलता है ना, तो दैट इज मोर देन इनफ. उससे ज्यादा नहीं चाहिए. हाँ, और पहले देखा जाए तो पहले जमाने में मेरे ख्याल से सारे वास्तु के ही बहुत अकॉर्डिंग होता था कि मंदिर का कहाँ पोजीशन होना चाहिए, है ना. क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पापा ने जब ये घर खरीदा था तब उन्होंने हमेशा देखा था कि ईस्ट के साइड का थोड़ा फेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो पहले पुराने जमाने में लोग ये चीजें देखते थे और वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता भी है. और बहुत वो है. और सरप्राइजिंगली आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी सिस्टर का बेटा है एंड ही इज जस्ट अभी 10th में दिया है, और वो मुझे मॉरल सपोर्ट करने के लिए वो जरूर यहाँ पे आता है. 2 बार से वो सेशन में आ रहा है जबकि उसका कोई रोल नहीं है. बट इट इज गुड टू सी किड्स जीरो कमिंग एंड सेइंग हेलो हाय दिव्या. हाँ यार, गुड. लास्ट टाइम तो आई लिटरली कुडंट. मैं इतना एक जो टॉक शो था, लाइव सेशन था, उसमें मैंने फिजिकल के ऊपर लिया था और बॉडी उसके लिए एक यूट्यूबर लड़का है बहुत अच्छा बेचारा, ही वांटेड टू आस्क क्वेश्चन और मैं उसे देख ही नहीं पाई. और बेचारा देख रहा है वो बोल रहा है मेरा क्वेश्चन एंड आई वाज नॉट टेकिंग हिज क्वेश्चन. एंड इट फील्स सो डिसहार्टनिंग नो. मैं इतनी देर से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा. हां, अभी 10th में दिया एंड ही इज तो दैट्स रियली ग्रेट. और हाँ,
ये हो गया। और कौन कौन से मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं, और यहाँ पे देखूं इसमें, नहीं तो फिर मैं अपने अपने क्वेश्चंस वो करूं। हाँ विच, हाँ एक और है आदित्य बंसल ने लिखा, बट ये लगता है मुझे इसने बहुत सारे क्वेश्चन को एक में डाल दिया है। जैसे विच थिंग कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग ऑफिस स्पेस और होम स्पेस? So, I व्हाट? mean, while designing, there are two different questions to it. First of all, is हाँ। let's talk about office spaces. So, सबसे पहला functionality जो office spaces में देखना है ना, is the movement. कि अगर लोगों को इस ऑफिस से भागना पड़ा, अर्थक्वेक आया, फायर हुआ, तो कैसे निकलोगे बाहर? दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू सी। आप ऐसा डिजाइन मत कर दो जिसमें 10 लोग एक साथ एक जगह पैक हो जाए, निकल ना पाए बाहर। So this is what I will say is the first most important question should come to your designer's mind. मैं बाहर कैसे निकलूंगा इस स्पेस के? एंड सिमिलरली होम्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में, जो आपको अपने क्लाइंट से पूछना है, व्हाट इज योर फैमिली साइज? आपको इस घर की रिक्वायरमेंट क्यों है? आप 2 साल के लिए लेना चाहते हो, 5 साल के लिए रखना चाहते हो, 10 साल के लिए रखना चाहते हो? उसके हिसाब से मैं इसको डिजाइन करूंगा। मैं उसके हिसाब से इसमें पैसा डालूंगा। अगर आपको 5 साल रखना है तो वो डालूंगा, आपको 50 साल रखना है तो वो डालूंगा। बिल्कुल, हाँ। और एक और क्वेश्चन आया था, इसमें था व्हाट इफ सम पीपल, अब तो क्या वर्क फ्रॉम होने ही लगा है, और ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब जैसे मेरी सिस्टर्स वगैरह बैंगलोर वगैरह में काम करते हैं, तो जब ये मैंने पहली बार बात सुना था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था वर्क फ्रॉम होम। बट वहां भी ये कंसेप्ट पहले से ही शुरू है, आपने देखा होगा मेट्रो में, तो हाँ, एंड इट इज गुड ऑल्सो। तो इससे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफ सम पीपल ऑफन वर्क फ्रॉम होम, if we see today's condition, it will become more common for employees to work at least partly from home. So does companies need to be concerned about home office design too? I will say yes, because the more and more offices are going towards work from home states, or maybe moving to tier 2 and tier 3 cities. So ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरठ में कोई बच्चा है, या हरिद्वार में या मुरादाबाद में कोई है, और वो गुड़गांव ट्रैवल नहीं कर पा रहा, तो उसकी कंपनी बोलेगी अच्छा अगर आप 10 15 20 लोगों, हायर अ कोवर्किंग ऑफिस, या अपने घर में एक ऑफिस बना लो। हाँ। So you don't have to travel to गुड़गांव। मुझे आपके लिए 15 सीट्स बुक करने की जरूरत नहीं है। I am incurring huge cost on you coming to Gurgaon. Why not you stay at Moradabad or Meerut and may take equal salary or maybe a less salary, which is okay. So बिल्कुल। more and more people, more and more offices are going into this state. For example, TCS, India's biggest IT company, they have already stated like 2025 तक वो लोग 75% अपना ऑफिसेस बंद कर देंगे। केवल 25% लोग आएंगे उनके ऑफिसेस में। And I'm talking about 2 lakh plus जनता. They have 2 lakh plus people working for them. So that means 1,50,000 people will be working from home. It's a पर huge वैसे number. अब मुझे ये लगता है कि अब ना एक और चीज होना चाहिए शशांक, कि हर घर में एक रूम, जैसे 3 बेडरूम होते थे या 2, एक रूम हमेशा एक ऑफिस के लिए रखना चाहिए, विच आई नाउ पर्सनली फील। और जैसे आपने बोला ना कि रूम शुड बी, अगर आपका रूम है तो इट शुड नॉट बी बेड, आपका एक रूम होना चाहिए। जैसे पहले स्टडी रूम हुआ करता था बच्चों के लिए, यू हैव टू हैव वन रूम, कोई भी स्पेस हो, उसको ना बिल्कुल ऑफिस की तरह कन्वर्ट करके, जहां पे आपको अगर वर्क फ्रॉम होम करना है तो यू शुड सिट इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड वर्क, क्योंकि वर्क का एनवायरनमेंट वैसे ही होना चाहिए जैसा है। और देखो आज पहली बार मतलब ऐसे होता रहता है कि ऐसे टाइम पास हो गया, क्योंकि ये लाइव सेशन 1 आवर के लिए हो पाता है, बट वी विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू शशांक, एंड इट वाज रियली ऑनर्ड टू हैव यू, एंड आई नो इंटीरियर स्टूडेंट्स हैव को बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, एंड दे आर सो हैप्पी एंड दे विल बी हैप्पी। And thank you once again from entire School of Art and Design team, my students, my faculty, and ITM University, and would love to have you again for my students. And Thank personally, you so much. we'll meet soon. 100%, 100%. We'll meet soon. And thank you so much for inviting me. It was pleasure talking to you. And I must say the questions which were coming were very nice. मुझे कोई भी question ऐसा नहीं लगा ये बोगस है। ये बहुत अच्छे questions थे। And everybody was so... आज ही मैंने हाँ देखा, and really students ने अच्छे पूछे थे, and मैं कह रही हूँ कि अच्छा लगता है। हाँ, और आप एंड आई वुड से कि अगर किसी को मैं एक और चीज बोलूंगा मनी, अगर किसी को ना बहुत और इंटीरियर्स की प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो मैंने ना एक बुक लिखी है और अमेजन पे वो बुक है। आई विल शेयर दैट लिंक टू यू। आई हैव गिवन ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स, मतलब मैंने अपने 10 साल का ना एक्सपीरियंस उस बुक में डाला है, और मैंने बोला है कि कितना आसान है इंटीरियर डिजाइन करना अगर आप उसको सही तरीके से प्ले करोगे। अगर मैं बोलता हूँ आप अपने YouTube चैनल का भी बता दो, क्योंकि उसमें भी आप बहुत छोटे छोटे बहुत अच्छी अच्छी चीजें डालते रहते हो। आई कीप ऑन वॉचिंग इट।
है Thank ना? you. Yes, हाँ and as you said, I have a YouTube channel, guys. People who are watching it. So my YouTube channel पे ना I try to give as much as possible जितना हो सकता है about sanitary fittings, about tiles, about fabrics, about curtains, about हाँ stone. So many things I've given it on the channel so that आपको ना बाजार में जाके धक्के नहीं खाने पड़े. आप यहाँ बस से हाँ स्टडी करके पहले जाओ and तब बिल्कुल जाके ढूंढो. ट्रू बिल्कुल So सो इट that is वाज there on हाँ Vodofa. Everybody can go and see Vodofa's YouTube channel and do subscribe me. Do या follow me on Instagram यस as well. श्योर श्योर बिल्कुल बिल्कुल यस हाँ थैंक यू सो मच और वुडोफा को जरूर सब्सक्राइब करिए उसको और प्लीज उसके चैनल को विजिट करिए बिकॉज मैं पर्सनली हमेशा विजिट करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है और एज एन इंटीरियर डिजाइन यही सारे आप देखोगे तो यू विल हैव प्लेनिटी ऑफ आइडिया यू विल गेट ये सारे एक्सपीरियंस है एंड डेफिनेटली शशांक विल शेयर द बुक लिंक टू मी एंड वी विल डेफिनेटली ऑर्डर एंड कीप and I'll ask every student to have it because that will be it will benefit them. Thank you Yes. so much and thank Thank you you so much. once Thanks again for coming. from her. Bye. Bye. Take And care. thank you all of you for watching us and hope you all enjoyed this session. Thank you. Take care. Take care.